Assalamu alaikum dear students. I am Sayyida Talzeen Fatima. I am here to teach you all physics on my channel Physics with Talzeen. So here I am going to teach you physics of class 11 Maharashtra board syllabus chapter number 13 electromagnetic waves and communication system. So before going to the main topic, I would like to discuss you all about wave. As you all know that a wave is nothing but it is an oscillatory disturbance which travels through a medium without changing its form. For example, water waves on ponds or lake. Suppose this is a pond or lake which consists of water. Consider standing water in a small pond. Okay, if we throw a stone in the standing water, we find that the disturbance will occur in a standing water in a circle form. This is a concentric circle which will proceed throughout the end of the water pond. So this disturbance is a periodic and a regular disturbance. Periodic means which repeats itself after a particular time interval. As you all have seen that these concentric circles will go on repeating itself after a particular time interval, and this disturbance is called as oscillatory disturbance because here the disturbance is carried out by the wave due to the particles which is present in a water, and that particle will perform to and fro motion. This to and fro motion is called as oscillation. So hence this wave is called as an oscillatory disturbance. That is, a wave is nothing but it is an oscillatory disturbance which travels through a medium without changing its form. Okay. As you all know that there are many types of waves, but we will be going to see here two types of waves. They are the first, transverse wave. What is transverse wave? Transverse waves are the waves in which the particle of the medium vibrates perpendicular to the direction of propagation of wave. Suppose this is the x-axis and this is the direction of propagation of wave. Okay, this means the wave is traveling along this direction. Okay, and here as we all know that the particles are in a state of vibration, so these particles will vibrate perpendicular to the direction of propagation of wave. This is the direction of propagation and the particle vibration is perpendicular to it, making a 90-degree with the wave, with the direction of the wave, right? So this is called as the transverse wave. As consider a string. Suppose this is a string which is tied at one end and the other end is with your hand. Suppose this is your hand. Okay, what you are doing, you are just giving a click to the string. You find that suppose you have put a ribbon on it here. Okay, if we give a click to the string, you find that this wave will start moving like this and the ribbon will move up and down, up and down. So the motion of this ribbon is perpendicular to the direction of this wave. So this is a transverse wave. So what is transverse wave? Transverse wave is the wave in which the particle of the medium vibrates perpendicular to the direction of propagation of wave. This upper part is called as crust and the lower part is called as trough. The distance between two successive crusts or two successive troughs are called as wavelength. What is wavelength? Wavelength is nothing but एक के बाद एक आने वाले क्रस्ट का जो बीच का डिस्टेंस होता है वो, या फिर एक के पीछे एक आने वाले ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो, उसे कहते हैं हम wavelength. Okay, now consider the longitudinal waves. What is longitudinal waves? Longitudinal waves are the waves in which the particle of the medium vibrates parallel to the direction of propagation of wave. For example, if this is the direction of the wave, suppose
Okay, the wave is going towards x-axis. Here this is the direction of the wave, and the particle will move along the direction that is parallel to the direction of propagation of wave. Here the particles will move parallel to the direction. This is the direction of propagation of wave, and the particle will move parallel to the direction of propagation of wave. So for the longitudinal waves, we are going to take a spring. As we all know that a spring, take a spring, consider this is a spring. Okay, tie one end of the spring to the fixed end. एक स्प्रिंग है जिसको आपने यहाँ पर फिक्स्ड एंड पे टाई कर दिया है, और एक हिस्सा आपके हाथ के पास दिया हुआ है. दिस इज योर हैंड सपोज. ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट प्रेसिंग द स्प्रिंग एट वन साइड एंड देन रिलीजिंग इट. आप इसको एक जगह से प्रेस कर रहे हैं और फिर उसको रिलीज कर रहे हैं. when you release it, you find that the springs get compression and rarefaction. फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट पे आपको ऐसे खुले खुले स्प्रिंग के हिस्से दिखाई देंगे और एक जगह पे आपको ऐसे कंप्रेस्ड पार्ट स्प्रिंग का दिखाई देगा, फिर एक जगह खुला हुआ पार्ट दिखाई देगा स्प्रिंग का. सो हियर दिस एरिया या दिस रीजन इज कॉल्ड एज रेरफ्रैक्शन. रेरफ्रैक्शन, and here the compressed part is called as compression. okay okay this is the rarefaction and compression. जैसा यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ आते हैं, वैसे ही यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में रेरफ्रैक्शन और कंप्रेशन देन रेरफ्रैक्शन आते चलते हैं. ओके, क्यों? यहाँ पर जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. यहीं पर उसकी वेव जा रही है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, इसके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. ओके, दिस इज अबाउट द longitudinal waves. Now we are going towards the electric field. Electric field, it is denoted by E bar, right? E bar, it is the force experienced by the test charge in presence of a given charge at a given distance from it. Suppose this is a given charge. ये एक चार्ज दिया हुआ है और इस चार्ज के अतराफ एक फोर्स होता है जो एक स्फेरिकल फॉर्म बनाता है. Okay, this is the force. Okay, when you brought a test charge, suppose Q, in this region, okay, and this test charge is brought near the region of the charge Q at a distance of R. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सपोज स्मॉल r है, और जब आप ये टेस्ट चार्ज इसके एरिया के करीब लेकर आते हैं, तब the force experienced by this charge is called as the electric field. यहाँ पर जो भी फोर्स ये चार्ज एक्सपीरियंस करता है ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज डिनोटेड बाय ई बार. अब ये चार्ज एक टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है. इसके पास जब रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा उसी के हिसाब से आप इस चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव डिक्लेयर कर सकते हैं. I told here earlier that this is the test charge, right? तो यहाँ पर जब आप ये चार्ज को लेकर आएंगे तो यहाँ जो भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, राइट? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ अ गिवन चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो r है और यह आपका गिवन चार्ज है, तो ये फोर्स जो ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल B bar. ओके, as you all know that a magnet always has two poles. अगर आपको यहाँ कोई एक मैग्नेट दिया गया है तो हमेशा याद रखिए ये मैग्नेट के हमेशा टू पोल्स होते हैं. एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल. ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द south pole. Okay, and this field is denoted by the V bar, and the magnetic lines of forces have neither beginning nor end.
ये जो इसके लाइन्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, इसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई इसका एंड है, राइट। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। ये फील्ड को कहते हैं V बार, राइट। दिस इज द V बार। कंसिडर दिस इज अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर। इसके अंदर करंट है, ये कंडक्टर है, राइट। इसके अंदर करंट I है। सो इसके अतराफ भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसीलिए इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। ओके, सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द मैग्नेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल और अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर ये करंट कैरिंग कंडक्टर के अतराफ भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ओके, एंड दिस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ पर जो आपके लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाए गए हैं, it has neither beginning nor end. Okay, so this is about the magnetic field and electric field. As we know that this is an advanced computer age in which we are living, right? So this is entirely based on electromagnetic waves. ये पूरी electromagnetic waves से ही चलती है। अब वो कैसे? Like we are using the cell phones, mobile phones, internet, TV, etc. right, to get connected with each other. हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंटरनेट जो आजकल बहुत चल रहा है, जिस पर से हम क्लासेस भी ले रहे हैं, राइट। तो हम ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, राइट। सो दीज ऑल गैजेट्स विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ आर ड्यू टू द EM waves, electromagnetic waves. What is EM waves? EM waves is nothing but it is the electromagnetic waves. The name only suggests electromagnetic. Electro comes with the electric field जो मैंने आपको अभी बताई हूँ, and magnet comes with the magnetic field जो मैं आपको बताई हूँ अभी, right? तो ये दोनों फील्ड की वजह से जो यहाँ पर वेव्स फॉर्म होते हैं, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो दिस ऑल गैजेट्स यूजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज देयर कैरियर वेव्स। कैरियर मतलब जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जो यहाँ से यहाँ सिग्नल को ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल ले जाते हैं, उसे कहते हैं कैरियर। So these electromagnetic waves are nothing but they are the carrier waves to transmit the signals from one place to the another place. Okay, so this is the important points of the electromagnetic waves. Like we are using here cell phone, mobile phone, internet या फिर broadcasting system, ये सब हम electromagnetic waves की वजह से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, right? Electromagnetic waves are the carrier waves which is used to transmit the signal. ट्रांसमिट करने के लिए, सिग्नल्स के लिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और जो एनर्जी हम सन से मिलती है या फिर जो रेस सन की तरफ से यहाँ आती है, सपोज दिस इज द सन, ओके, एंड दिस सन विल एमिट सम रेस, ये डायरेक्टली अर्थ के पास यहाँ पर गिरती है, तो ये जो है ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, एंड इट ट्रैवल्स नियरली 150 million किलोमीटर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। इतना डिस्टेंस ये रेस ट्रैवल करती है। सन रेस जो यहाँ पर आती है, इट रीचेस अस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो सन रेस यहाँ हमको डायरेक्टली आती है अर्थ की तरफ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए ही आती है, जो 150 मिलियंस ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, राइट। सो हम जो यहाँ पर एक्सरेज या लाइट बल्ब जो भी यहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे लाइट फ्लैशनिंग होती है, स्टार्स की लाइट, गैलेक्सीज, ये सब में आपको इलेक्ट्रिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वी कैन ऑब्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द लाइट बल्ब या फिर हीटेड ऑटोमोबाइल्स, जो भी ऑटोमोबाइल्स गर्म किए गए हैं वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करना शुरू कर देते हैं। These are the important points on electromagnetic waves. This shows that the electromagnetic waves are very important in our life. Now let us have a look about electromagnetic waves. Means what is electromagnetic waves? Electromagnetic waves are the waves which
are generated due to the periodic vibrations of both electric field and magnetic field. This electromagnetic waves are the waves which are generated due to periodic vibrations. मैंने आपको periodic का मीनिंग बताई हूँ. periodic का मतलब जो अपने आप को रिपीट करता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद. तो यहाँ पर periodic vibrations होते हैं both इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के. ये दोनों भी अपने साथों साथ periodic vibrations परफॉर्म करते हैं, तभी आपको यहाँ पर electromagnetic waves मिलते हैं. Okay, so there are 4 basic laws which describes the behavior of both electric and magnetic field and the relation, their generation of charges and the currents. तो पहला हम लॉ देखेंगे. 4 ऐसे लॉज हैं जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्क्राइब किए गए हैं आपके सिलेबस. यहाँ पर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स विच आर जनरेटेड ड्यू टू द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो पहला लॉ देखेंगे हम, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं. व्हाट इज द गॉस लॉ? It describes the relationship between the static electric charge and the electric field produced by them. Static electric charge मतलब stationary charge या फिर ऐसा charge जो कि rest position पे होता है, right? That is the electric charge is at the rest position and it has the electric field around it. अपने अतराफ वो एक electric field रखता है. Okay, so this is the Gauss law of electrostatics. Now the second one is Gauss law of magnetism. Gauss law of magnetism क्या बताता है? मैग्नेटिक मोनोपोल्स के बारे में. What is monopoles? मोनोपोल का मतलब है एक पोल. क्या आप ऐसा कोई मैग्नेट बता सकते हैं जो एक ही पोल रहता है, जिसको या तो सिर्फ नॉर्थ पोल या तो सिर्फ साउथ पोल? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ मैंने उसको कट की हूँ और ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है. ओके, सो दिस 2 मैग्नेट हैज़ बोथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल. जैसे यहाँ पर जो बड़ा मैग्नेट था उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, उसी तरह से अगर आप मैग्नेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तब भी उसके अंदर 2 पोल्स आएंगे. मोनोपोल्स मतलब सिंगल पोल्स ऑफ द मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट. कभी भी यहाँ पर ऐसा मैग्नेट जिसको सिंगल पोल होता है वो यहाँ पर नहीं मिल सकता है. राइट, ठीक है. तो यहाँ पर गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में यही बताया गया है मैग्नेटिक मोनोपोल्स के बारे में, विच आर थॉट टू बी मैग्नेटिक चार्जेस इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो कि चार्जेस के बराबर होते हैं, मगर मोनोपोल्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, सिंगल इलेक्ट्रिक चार्जेस या सिंगल मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं. राइट, जैसा आप अगर सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव चार्ज देख सकेंगे, नहीं, वो सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट. उसी तरह से मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ द थर्ड वन इज द Faraday's law. Faraday's law gives the relation between the induced EMF in a current when the magnetic flux linked with the current changes. जैसा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आता है, वहाँ पर आपका EMF इंड्यूस्ड होता है. That is, the change in magnetic field produces an induced EMF in the given circuit. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपको चेंजेस हुआ तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा सर्किट के अंदर. नाउ द फोर्थ लॉ इज द एम्पियर लॉ. एम्पियर लॉ सेज दैट इज गिव द रिलेशन बिटवीन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड associated with the loop and a current flowing through the loop. Suppose this is a loop and the current is flowing in a loop. यहाँ पर से करंट फ्लो हो रहा है. राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ पर करंट मूव होता है या करंट यहाँ पर फ्लो होगा, वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर मिलेंगी. राइट, ठीक है. वैसे ही व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग इन लो लूप देन द मैग्नेटिक फील्ड गेट इंड्यूस्ड इन दैट लूप. ठीक है, दिस आर द 4 लॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट. बट आफ्टर दैट द मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है जो कि नोटिस किए कि यहाँ पर एम्पियर लॉ के अंदर एक और टाइम डिपेंडेंट फील्ड होना ज़रूरी है.
So he noticed that the magnetic field generated in a loop is not only due to the electric charges flowing through the loop, but it is also due to the change in electric field. यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट फ्लोइंग की वजह से हो रहा है, राइट. सिर्फ करंट की वजह से नहीं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, राइट. तो ही एडेड वन मोर टर्म इन द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द एम्पियर लॉ. इसी में उन्होंने एक टर्म ऐड किए हैं जो कि ये लॉ डिस्क्राइब कर रहा है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट करंट. दैट टर्म इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया गया है. विदाउट दिस टर्म द इक्वेशन वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. ये इसके बाद बन गई है मैक्सवेल्स इक्वेशन. वो एक टर्म और उन्होंने ये 4 लॉज के साथ एक टर्म ऐड किए, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो इक्वेशन को कहा गया है मैक्सवेल इक्वेशन. ओके, चलिए, देयर आर सम साइंटिस्ट who has given these laws. You have a look at this. The set of these 4 equations are called as Maxwell equation. अभी मैंने आपको बताई हूँ कि जो 4 equations दिए गए हैं उसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने ऐड किए हैं उसको पूरी इक्वेशन को बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. अब यहाँ देखिए, इन 1888 साइंटिस्ट हर्ट्ज ये प्रपोज किए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स देयर प्रॉपर्टीज़ लाइक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. हर्ट्ज ने क्या प्रपोज किए हैं, हर्ट्ज बताए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके प्रॉपर्टीज़, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस है. ये आपने पिछले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. रिफ्लेक्शन जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्शन जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होकर अंदर पास हो जाती है, बेंडिंग ऑफ द रेज, और इंटरफेरेंस जब 2 लाइट्स उस कोहेरेंट सोर्सेज के जब इंटरफियर होता है तो वो इंटरफियरेंस होता है. ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर शोन बाय द हर्ट्ज इन 1888. और 1895 में सर जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रेंज बताए हैं EMF की, जो कि एक रेंज बताए हैं EMF की वेवलेंथ के हिसाब से. कितनी बताए उन्होंने, उसकी जो वेवलेंथ है 5 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर तक होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द वेवलेंथ फ्रॉम 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर्स. ओके, और लास्ट है मार्कोनी. मार्कोनी जो है 1896 ईयर में उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी डेली लाइफ में अभी ज़्यादातर एडवांस स्टेज में चल रहा है, राइट. सो ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1909 फॉर दिस वायरलेस कम्युनिकेशन. उन्होंने 1909 में वायरलेस कम्युनिकेशन निकाला था और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है. ओके, उन्होंने आगे टेलीग्राफी, टेलीफोनी, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ये सब उन्होंने निकाला है इन 1896. जी मार्कोनी. दिस इज़ द नॉलेज अबाउट द 3 साइंटिस्ट. सो हम आज का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं. आगे सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आगे पढ़ेंगे.